Hello and good evening everyone. Welcome back to learning session. This is Pali, and if you are preparing for AML and KYC which is covered under certification course, then do watch this video till end, because in this video we are covering important topic and important chapter in conceptual manner, so stay tuned till the end. And if you want to enroll AML and KYC course from learning session, then you have to download Android application which is IIBF Learning Center app from Google Play Store. And if you are iOS user, then you have to download My Institute app and use the organization code which is GEGKT, as you can see on the screen. So guys, hurry up, do enroll now. And here is exciting offer, and you can also join our Telegram channel. So in this channel you will be getting latest updates and latest notification regarding all the certification courses, and in this channel you will be getting questionnaire in the form of polls and free EPDF notes which is complimentary given by us. To access them, you just have to join with us. And here is exciting offer which is at 82% off on our all listed pack. Just you have to apply coupon code exams, as you can see on the screen. So guys, don't miss the chance, just grab the opportunity to enroll the AML and KYC course from learning sessions. So after enrollment, the premium member will be getting conceptual videos in Hindi and English mixed language, mock tests, recorded live lectures according to the latest syllabus, and yes, free e-PDF notes which is complimentary given by us. To access them, you just have to join our Telegram channel. So the link of the app and the Telegram channel is in the description box below. Do check it now. And if you have any query or doubts related to course details, you just have to contact us. नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो. 9 to 5 हमारी टीम आपको जरूर रिवर्ट करेगी. And you can also visit our website which is iibf.info. And if you are new on our channel, then do subscribe our channel and don't forget to press the bell notification icon for upcoming new video. So let's start today's video. So आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज AML एंड CFT ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया. इंडिया के अंदर किस किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है फॉर द AML एंड CFT. AML एंड CFT हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कम्बैटिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म, ठीक है. तो अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अब FATF के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है. लास्ट चैप्टर्स में हमने FATF के बारे में पढ़ा था, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. तो ये क्या है, इंडिया भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी मेंबर है, ठीक है. उसके लिए भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, देखो इंडिया जो है, हमने इंडिया के बारे में पढ़ना कि इंडिया कौन कौन से रेगुलेशन, इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कवर करता है, इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वो एज अ मेंबर बना हुआ है, ठीक है. सो पहले तो आता है FATF के अंदर मेंबर है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है एक्शंस लेने में, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग एंड CFT के बारे में जिसको भी पता लगता है, ठीक है, रिपोर्टिंग के जब भी पता लगता है, राइट. एंड कुछ ऐसे सेवरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ठीक है, वो हम फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं, राइट. एंड सबसे पहले आपको बता दो AML, ठीक है, AML एंड CFT दोनों वैसे अलग होते हैं, ठीक है. सो इसके लिए कोऑर्डिनेशन, जो ये जितने भी जो सेंट्रल फंक्शंस होते हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए इनके लिए अलग से बॉडी बनाई गई है. तो उनको कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है. कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है, ठीक है. सो सबसे पहले आता है कि जो टेररिज्म के रिलेटेड जितने भी मेजर्स होते हैं, ठीक है, जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है, जो भी रिपोर्टिंग करनी होती है, किस तरह से एक्शंस लिए जाए, वो कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये कौन किसको देखता है, किसको देखता है, ये टेररिज्म यानी कि CFT को देखता है, ठीक है. लेकिन AML के लिए यहाँ पे अलग से सेटअप किया गया है, ठीक है. यहाँ पे अलग से सेटअप किया गया है. वो कौन कौन से सेटअप किए गए वो देखते हैं, ठीक है. जैसे कि FATF है, ठीक है. FATF का अलग से यहाँ पे सेल बना गया जिसको रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. जिसको कौन रेगुलेट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो यहाँ पे सेल को क्रिएट किया गया है, किस वजह से किया है, सो डेट एप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जाए. आपको सेल तो पता ही होंगे, ठीक है. जैसे हम बोल देते हैं काल कोठरी, ठीक है. तो काल कोठरी की जगह पे हम बोल सकते हैं एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसके अंदर जो भी AML के रिलेटेड एक्शंस लेने होते हैं वो इस सेल के अंदर ले सकते हैं, ठीक है. एंड इन द कंट्री फॉर द इम्प्लीमेंट FATF रिकमेंडेशंस, जो भी FATF के रिलेटेड जितने भी रिकमेंडेशंस के रिलेटेड जितने भी एक्शंस लिए जाते हैं वो इस सेल के अंदर लिए जाएंगे, ठीक है. एंड मोर ओवर
ये किसके अंडर काम करेगा, ये जो भी सेल है, ठीक है, FATF का, वो किसके अंदर काम करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इज इट क्लियर? सो ये सेल को हैंडल कौन करता है, ये इंडिया हैंडल करती है। अब यहाँ पे इंडिया एज अ मेंबर बना हुआ है FATF का, तो इस केस में FATF के अंदर जो इंडिया है वो ही रेगुलेट करती है, ठीक है, एंड रीजनल बॉडीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMLA, राइट। सो ये जो सेल है ये क्या इंश्योर करती है, दैट इंडिया इज असिस्टेड एट अ हाई level during the evaluations and they has impacted as they impact India standing in the international financial market, so that वो जो भी इंटरनेशनल की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके अंदर अच्छे से खरी उतर सके। इस वजह से यहाँ पे सेल बनाया गया है, so that वो एक्शंस प्रॉपरली ले पाए। अब देखो यहाँ पे पूरे मेजर्स लिए जा रहे हैं। हमें पता है कि अगर यहाँ पे किसी भी तरह से सस्पिशियस एक्टिविटी पाई गई, ठीक है, सस्पिशियस एक्टिविटी पाई गई है एंड हमने एक यहाँ पे कस्टमर को भी पकड़ लिया, ठीक है, सो उसके लिए कोई प्रॉपर एक्शंस भी तो होने चाहिए। यहाँ पे प्रोसीजर पता है लेकिन एक्शंस नहीं हो पा रहे, तो उसका क्या फायदा। इसीलिए एक अलग से सेल बनाया गया है जिसके अंदर अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जा सकते हैं अंडर द FATF। इज इट क्लियर, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दैट इज FIU इंडिया को यहाँ पे रेगुलेट करता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसको रेगुलेट करता है, एक और को देखो, पहले हमने क्या बात करी, FATF, ठीक है, FATF का सेल बनाया गया था। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक और चीज विच इज नोन एज द फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट, ठीक है। इंडिया के हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं FIU इंडिया के बारे में। तो एक्चुअली में होता क्या है, तो FATF के रिकमेंडेशंस पे यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रीसेट किया जाता है FIU इंडिया के अंदर। अब इसमें क्या होता है, ये देखो क्या होता है, जब भी कोई हमें रिपोर्ट मिलती है, ठीक है, हमें कोई रिपोर्ट मिली है इस बैंक से कि इस कस्टमर का हमें सस्पिशियस एक्टिविटीज़ लग रही हैं, इस बैंक से, इस कस्टमर से हमें कुछ डाउट्स हो रहे हैं, तो उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्ट्स होंगी, जो भी, यानी कि STR हो सकता है या CTR हो सकता है, हम फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं। ये दोनों होते क्या है, ठीक है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स एंड कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स, राइट। तो अब इन सबकी रिपोर्ट जो है वो किसके पास जाती है, FIU के पास जाती है, इनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट्स के पास जाती है इंडिया की, ठीक है। सो FIU इंडिया वो स्टैब्लिश कब हुआ था, नवंबर 2014 के अंदर। यहाँ पे किसके अंडर हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रेगुलेट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करती है, लेकिन किसके अंडर इस्टेब्लिश हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर हुआ था, ठीक है। सो एक ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके अंदर यहाँ पे इकोनॉमिक ये इसके पास जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं वो रिपोर्ट्स किसके पास भेजता है, रिपोर्टिंग टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट काउंसिल, जिसको EIC बोला जाता है। एंड EIC को भी कौन हेड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करती है, ठीक है। सो FIU इज ऑल बेसिस इज द बेसिस ऑफ द ऑल AML रिलेटेड एक्टिविटीज। जितनी भी AML की रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। जितनी भी कंट्री के अंदर AML के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है, कोई भी रिपोर्ट होती है, वो सारा का सारा यहाँ पे कौन देखता है, FIU देखता है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, मिशन स्टेटमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन विजन। अब यहाँ पे FIU का यहाँ पे क्या मिशन है एंड उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो मिशन हम जान लेते हैं। so, इसका मिशन क्या होता है कि ये क्वालिटी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सके, सो डैट जितनी भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसको सेफ गार्ड कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। कहाँ से प्रोटेक्ट कर सके, मनी लॉन्ड्रिंग से, ठीक है, टेररिज्म से कर सके, या जिससे किसी भी तरह से अगर इकोनॉमिक में ऑफेंसेस हो रहे हैं वहाँ से बचा सके। अब ये किसका मिशन है, FIU का, ठीक है। FIU का यहाँ पे मतलब क्या है, जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है कंट्री की, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, फाइनेंशियल सिस्टम को यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है उसकी क्वालिटी प्रोवाइड करें, ठीक है, किस तरह से आपने इंटेलिजेंस यूज करनी है उसकी क्वालिटी प्रोवाइड करें, एंड मोर ओवर सेफ गार्ड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। किससे प्रोटेक्ट कर सके, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है, जो भी टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है, या फिर किसी भी तरह से इकोनॉमिक ऑफेंसेस से। सो इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करना होता है यहाँ पे, फॉर कम्बैक्टिंग एंड टेररिटिंग द मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस, बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है उन्हीं को ही स्ट्रेंथन करना, उन्हीं को ही इतना बिल्डअप करना, उनमें इतनी कैपेसिटी लेके आनी कि ये सब जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है, फाइनेंसिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग है, इन सबको वो कम कर सके, इतना उसको स्ट्रॉन्ग बना देना, कैपेसिटी लेके आ जाना कि वो उसको कब बंद कर सके, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ऐसे थ्रस्ट हैं, ठीक है, जो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से FIU कम कर सकता है, थ्रस्ट बता रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आता है इफेक्टिव कलेक्शन। यहाँ पे कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है एंड इन्फॉर्मेशन को
डिसेमिनेशन करता है, मतलब बाइफर्केट करता है। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बता चुकी हूँ, जो भी रिपोर्ट होती है यानी कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होती है या फिर कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होती है, ये सब रिपोर्ट्स किसके पास जाएगी, आरबीआई के तो पास जाएगी नहीं, ठीक है। ये किसके पास जाएगी, एफआईयू के पास जाती है, ठीक है। एफआई यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास जाती है। तो अब ये क्या करता है, ये इस इन्फॉर्मेशन, अब रिपोर्ट के अंदर होता है एक्चुअली में इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को पहले वो कलेक्ट करता है, अच्छे से एनालाइज करता है, देन बाइफर्केट करता है उस इन्फॉर्मेशन को जिसके अकॉर्डिंग उसने बेसिस बनाने हैं, ठीक है, क्लासीफाई करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। कहाँ कहाँ तक वो हेल्प ले सकता है, किस तरह से वो एक्शंस यहाँ पे देखना शुरू कर देते हैं। एंड बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज, अब जितनी भी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ रिपोर्टिंग एंटिटीज क्या होती है, हमने लास्ट चैप्टर में किया था, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो अच्छे से। अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो आपको ये पता होगा रिपोर्टिंग एंटिटीज क्या होती है, ठीक है। कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसी बॉडी, ठीक है, कोई भी एंटिटी है, पर्सन कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेस फॉर्म कह सकते हैं, जो कि रिपोर्ट करती हो, ठीक है, जो रिपोर्ट करती हो, राइट, तो वो रिपोर्टिंग एंटिटीज हो चुकी है, राइट। एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस टू रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस अंडर पीएमएलए एंड स्ट्रेंथिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको भी स्ट्रेंथन करना किसका काम होता है, एफआईयू का होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ द एफआईयू। फंक्शंस क्या क्या हैं एफआईयू के, तो सबसे मेन फंक्शंस आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ एफआईयू का काम होता क्या है। जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है एज अ रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट उनको प्रोवाइड की जाती है, तो उस रिपोर्ट को क्या करते हैं, हर एक रिपोर्ट्स को अलग अलग छांट लेते हैं कि कौन किसके रिलेटेड है, उसको अलग से यहाँ पे क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है, कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, राइट, एनालाइज करना शुरू कर देते हैं एंड बाइफर्केट करते हैं, ठीक है। एंड टू द इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट लाइक DORI एंड ED एंड CBI से वो यहाँ पे कॉन्टेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन किसके फॉर्म में होता है, रिपोर्ट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, रिपोर्ट के फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जैसे CTR STR हो गया, ठीक है, या CBWTR ऐसे, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट्स, ठीक है, एंड रिपोर्ट्स ऑन द परचेज ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये अलग अलग रिपोर्टिंग एंटिटीज उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसके हिसाब से वो कलेक्ट करते हैं, राइट। एंड उसके बाद आता है एनालाइज ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब उनके पास काफी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, ठीक है, अब उनको एनालाइज करता है, पैटर्न में उनको जज करता है, पैटर्न में उनको क्लासीफाई करता है, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज कौन कौन से क्राइम्स रिलेटेड है, कौन कौन से मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड, सबको क्लासीफाई करता है, राइट। नेक्स्ट वन इज शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब इन सब इन्फॉर्मेशन को अपने पास एनालाइज करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, किससे करेगा, जो भी NI है यानी कि नेशनल इंटेलिजेंट एजेंसी है, ठीक है, या फिर लॉ इन्फोर्समेंट जितनी भी एजेंसीज हैं, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, या फिर फॉरेन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, उन सबको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा कि हमारे पास ये रिपोर्ट आई है और ये पक्का है, हमने एनालाइज कर लिया, हमने वेरीफाई भी कर लिया, आगे एक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है, आगे फर्दर अपनी इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर करता है काफ़ी बड़ी बड़ी एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन के अंडर आती है, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज एक्ट एज सेंट्रल डिपॉजिटरी, तो यहाँ पे सेंट्रल डिपॉजिटरी का काम क्या करता है, मतलब कि एक ऐसा डिपॉजिटरी यहाँ पे सेल बना चुके हैं जिसके अंदर जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं वो सब किसके पास भेजेंगे, उस एफआईयू के पास भेजें। तो यहाँ पे एक सेंट्रल डिपॉजिटरी बन जाता है, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन नेशनल डाटा, यहाँ पे नेशनल डाटा होता है, ठीक है, ऑन द कैश ट्रांजैक्शन या किसी भी तरह से जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है उनके बेसिस पे यहाँ पे डिपॉजिटरी यहाँ पे सेव की जा सकती है, ठीक है, यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। कोऑर्डिनेट किया जाता है जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, रीजनल लेवल पे हो, ग्लोबल नेटवर्क पे हो, सबके साथ कोऑर्डिनेट करना किसका काम होता है। अगर हम कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे तो हमें क्या है, वेरीफाई होगा ही नहीं, ठीक है, हम सस्पेक्ट ही नहीं कर सकते उस पर्सन को, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज रिसर्च एनालिसिस, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिसर्च करना, एनालाइज करना, ठीक है, मॉनिटर करना, आइडेंटिफाई करना कि इसकी कीज क्या क्या है, हम किस तरह से इसको रोक सकते हैं, तो ये भी क्या है एफआईयू के फंक्शंस में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब कौन कौन सी इनिशिएटिव्स एफआईयू ने लिया, यहाँ पे एल नहीं आएगा, सॉरी, तो इंडिया ने कौन कौन सी यहाँ पे इनिशिएटिव्स दी थी। सबसे पहले जो इंडिया के अंदर आईटी स्ट्रक्चर आया था, आईटी सिस्टम आया था, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो अक्टूबर 2012 के अंदर आया था, ठीक है, मतलब कि एफआईयू के अंदर जो आया था, ठीक है, वैसे काफ़ी पहले आ चुका था लेकिन एफआईयू के अंदर 2012 के अंदर आया था, अक्टूबर के अंदर। एंड
आईटी सिस्टम को लॉन्च किया गया था जिसको बोला जाता है फिननेट, जिसमें आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो। जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं वो अपना अलग अलग यहाँ पे पोर्टल बनाते हैं। पोर्टल का नेम है फिनगेट, ठीक है। जैसे आपको स्कूल्स एंड कॉलेजेस में होते हैं या फिर आप जो जिस भी बैंक्स में हो, सबका पोर्टल बनता है, ठीक है। हर एक कस्टमर का पोर्टल बनता है, तो इसी वजह से हर एक रिपोर्टिंग एंटिटीज़ का पोर्टल बना हुआ है जिसके अंदर वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। अब इस ऑनलाइन रिपोर्टिंग को क्या बोलते हैं? फिननेट बोलते हैं, ठीक है, जो कि अक्टूबर 2012 में आया था और एफआईयू ने यहाँ पे इसको अडॉप्ट किया। सो नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। किस किस तरह से शेयरिंग की जा सकती है इन्फॉर्मेशन की, वो पढ़ने वाले, मतलब किस किस तरह की यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स है, राइट। तो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में क्या होता है? कैश के रिलेटेड यहाँ पे रिपोर्ट की जाती है, ठीक है। अब कैश के रिलेटेड कितनी रिपोर्ट, मतलब क्या रिपोर्ट की जाएगी? जो 10 लाख से ज़्यादा की यहाँ पे कैश की ट्रांजेक्शन करता है वो यहाँ पे रिपोर्ट की जाती है, मतलब वो एफआईयू के अंडर जाके रिपोर्ट करनी होती है, ठीक है। जो जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होती है जिनकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा होती है वो यहाँ पे रिपोर्ट होती है। एंड मोर ओवर जो फॉरेन करेंसी के अंदर भी जिनकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा की होती है वो भी यहाँ पे रिपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। एंड मोर ओवर जो इंडिविजुअल एंट्रीज होती है वो 50,000 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल एंट्रीज बिलो, मतलब इससे बिलो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, विल नॉट बी रिपोर्टेड, ठीक है। सॉरी, इसके जो नीचे जो इसके नीचे जो भी है, जैसे लेट्स सपोज कि 49,000 की आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया तो वो आपकी रिपोर्ट नहीं होगी, ठीक है, इन द कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, अगर किसी को इंडिविजुअल एंट्रीज होती है तो। एग्जैक्टली, सो ये इसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। और ये हर महीने के, ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, ठीक है, अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, सो नेक्स्ट 15 सितंबर तक आपने क्या करना है? इसको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट इज सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट क्या होती है? सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? डाउटफुल, जहाँ पे हमें डाउट लग रहा है, जहाँ पे हमें सस्पेक्शंस आ रही हैं, ठीक है, सस्पेक्ट हो रहा है, राइट। तो अब इसको कब हमने रिपोर्ट करना होता है एफआईयू को? विद इन 7 डेज। आपको पता लग गया, आज यहाँ पे सस्पिशियस रिपोर्ट तैयार होगी, आपको पता लगे कि ये जो चीज़ है ये हमें यहाँ से डाउट हो रहा है, तो आपको विद इन 7 डेज, ठीक है, जब से आपको पता लगा उसके विद इन 7 डेज आपको रिपोर्ट करना ही होगा, ठीक है, जब आपको कंफर्मेशन हो जाती है, ठीक है। सो गिव अ राइज टू रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट इट मे इन्वॉल्व द प्रोसीजर ऑफ क्राइम। जी क्राइम हो, ठीक है, आपको अनयूजुअल लगे, कम्प्लेक्सिटी लगे, तो आप जाके यहाँ पे कर सकते हो, जो कि इकोनॉमिकल, रैशनल और बोनाफाइड पर्पस हो, मतलब आप जो भी आपको लगता है कि ये किसी भी तरह से रिलेशनशिप पे नहीं है, ना इकोनॉमिकली, ठीक है, ना ही कोई यहाँ पे किसी भी जो सबूत होता है या फिर कोई जो जिसको बोल सकते हैं हम कि जो खास जो पर्पस होता है उस वजह से नहीं यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है, तो इस यहाँ पे STR में यहाँ पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं लास्ट चैप्टर में कि NTR भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि NGOs मान लेते हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, तो अगर उसके वो भी ट्रांजेक्शन करते हैं 10 लाख से ऊपर, ठीक है, 10 लाख की वैल्यू से ऊपर वो करते हैं, तो उनके यहाँ पे क्या किया जाता है? रिपोर्ट्स किए जाते हैं, ठीक है। किसको करेंगे? FIU को करते हैं। एंड वो भी क्या, लेट्स सपोज कि अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, तो नेक्स्ट 15 दिसंबर तक आप उन्होंने क्या करना? रिपोर्ट करवानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट। तो जिसको बोलते हैं CWTR। तो यहाँ पे जो भी क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वो भी जिसकी वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा उसकी नहीं होनी चाहिए, राइट। सो इस केस में उसको भी हर महीने के 15 दिन में आपने यहाँ पे रिपोर्ट करवानी होगी, ठीक है, अगले महीने के 15 डेट तक आपने यहाँ पे रिपोर्ट करवानी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज मेजर्स फॉर इम्प्रूव्ड कंप्लायंस विद PMLA। तो ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो PMLA के साथ, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के साथ कंप्लायंस करते हैं। सो आपको तो ये पता ही होगा कि FIU का फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज होते हैं वहां से रिपोर्टिंग लेना, ठीक है, वहां से इन्फॉर्मेशन लेना एंड देन उसको कलेक्ट करना, एनालाइज करना एंड बाइफरकेट करना, राइट। तो इसमें काफी सारे मेजर्स बताए गए हैं। सो फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग अवेयरनेस फॉर इनहैंस वॉलंटरी compliance। तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ठीक है। अवेयरनेस किसके अंदर क्रिएट करनी है? जो भी वहाँ पे मेंबर्स होंगे, स्टाफ्स होंगे, ठीक है, उनको कोर्सेज प्रोवाइड करो, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो कि आपने इस तरह से रिपोर्टिंग तैयार करनी है, आपने इस तरह से सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को पकड़ना है, ठीक है, एंड रिपोर्टिंग तैयार करके FIU को भेजना है, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है कि इसमें रिस्क ज़्यादा है, डिटेक्ट हो रहा है, तो आपने रिपोर्ट तैयार करनी है,
है। सो इस तरह से आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट वन इज रेगुलर रिव्यू मीटिंग फॉर इंश्योरिंग रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर रेगुलर रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए ताकि हम रिव्यू कर सकें, ठीक है। जो भी रेगुलेटर होगा, रेगुलेटर एंटिटीज होंगी, उनके साथ मीटिंग्स कर सकते हैं सो डेट हमारे में कोऑर्डिनेशंस बन सके एंड फीडबैक लेते जाएं ताकि उनकी क्वालिटी किस तरह से है, ठीक है। अगर हम ऐसे बिना फीडबैक के हम चलते ही जाएंगे तो हमें पता ही लगेगा हम कहाँ लैग कर रहे हैं और कहाँ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए फीडबैक का लेना जरूरी होता है सो डेट हमें अटेंशन मिल जाती है रेगुलर मीटिंग से, ठीक है। The next one is detecting contravention in reporting। अगर किसी भी तरह से यहाँ पे contravention is what, उल्लंघन करना, तो रिपोर्टिंग के अंदर किसी भी तरह से उल्लंघन का हमें पता लग जाता है तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको रिपोर्ट करनी ही पड़ती है। तो आपको किसी भी तरह से आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से इन्वेस्टिगेट करवाया जाता है, ठीक है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कॉन्ट्रावेशन होती है पीएमएलए के अंदर तो वो आइडेंटिफाई करवाई जाती है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। अब ये कौन करता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करती हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, काफ़ी सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स एंटिटीज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं तो सबकी रिपोर्ट यहाँ पे ली जाती है। एंड अगर जो दूसरी रिपोर्टिंग एंटिटीज है जिसने रिपोर्ट की थी ट्रांजेक्शन, उनका भी यहाँ पे देखा जाता है, डिटेल रिव्यू किया जाता है यहाँ पे इंस्पेक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इम्पोजिंग वेरिंग लेवल्स ऑफ द सेंक्शंस ऑन द रिपोर्टिंग एंटिटीज। यहाँ पे इम्पोज किए जाते हैं, ठीक है, लेवल्स ऑफ सेंक्शंस। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी जो रिपोर्टिंग करते तो उनकी जो बात नहीं मानता या वॉयलेशंस करता है, ठीक है, या किसी तरह से अगर मिस्टेक होती है तो उसको रेक्टिफाई नहीं करना या फिर कॉन्ट्रावेशन को कंटिन्यू ही करते रहना, तो उस केस में यहाँ पे पहले मॉनिटर किया जाएगा, फिर मॉनिटर 6 महीने से लेकर 1 साल तक यहाँ पे किया जाता है, फिर फाइन भी यहाँ पे इम्पोज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी कि जिसको बोलते हैं ईडी, ठीक है, जिसको बोलेंगे ईडी। तो ईडी यहाँ पे क्या है, तो ईडी यहाँ पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी 1950 के अंदर। अब ये किसके अंदर, ये कौन, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ की गई थी, फैरा के अंदर। आपको मैंने आई थिंक करवाया होगा। फैरा होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन अथॉरिटी। तो यहाँ पे पहले फैमा को फैरा ही बोला जाता था 1973 के अंदर, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट होने के बाद उसको फैमा बोला गया, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। अब जब पीएमएल एक्ट आया 2002 के अंदर तो कुछ प्रोविजंस थे, ठीक है, वो भी ईडी के पास चले गए। पहले ईडी किसको देखता था, फैमा में देखता था। अब यहाँ पे पीएमएलए में भी ईडी ही देखता है, ठीक है। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट। अब ईडी को कौन देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देखती है। इसको कौन कंट्रोल करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। सो मेन फंक्शंस क्या होते हैं ईडी के, हम देखते हैं। जो भी वॉयलेशंस होती हैं फैमा की, ठीक है, जैसे फैमा की कुछ रेगुलेशंस हैं, अगर फैमा की कोई भी रेगुलेशंस को वॉयलेट करता है उसको कलेक्ट करना, ठीक है, एंड डेवलप करना एंड बाइफिकेट करना, ठीक है, उसकी रिलेटेड एंड इन्वेस्टिगेशन करना, जो भी सस्पेक्टेड वॉयलेशंस आपको दिखाई दे रही हैं जो फैमा के प्रोविजंस को करते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि हवाला हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेक्टरिंग हो गया, नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीज हो गया, या फिर नॉन रेपेट्रेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वॉयलेशन। अगर किसी भी तरह से फैमा के अंदर किसी भी तरह से वॉयलेशंस होती हैं इन सब के अंदर, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट की जाती है, ठीक है। एंड मोर ओवर जो भी केसेस होते हैं जो फैरा के अंदर केसेस थे, ठीक है, वो भी फैमा के अंदर यहाँ पे देखे जाते हैं। टू प्रोसेस केसेस प्रिवेंट डिटेक्शन अंडर द कन्वर्सेशन। अब यहाँ पे जो भी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट के अंदर जो भी प्रिवेंटिव यहाँ पे केसेस लिए जाते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिव यहाँ पे किसी भी तरह से सस्पिशियस एक्टिविटीज आपको दिखती हैं इसके अंदर देखी जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नॉन एज अ SIFO, ठीक है। सो SIFO जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या होता है कि फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस होता है, ठीक है, जो भी जितने भी सीरियस फ्रॉड्स होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑफिस। तो इसके अंदर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स बिठाए जाते हैं, जैसे कि जो कौन कौन सी फील्ड्स के हो सकते हैं, अकाउंटेंसी के, फॉरेंसिक के, ठीक है, फॉरेंसिक ऑडिटिंग के, फॉरेंसिक लैब आपने सुना होगा, लॉ के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिगेशंस, कंपनी लॉ एंड कैपिटल मार्केट एंड टैक्सेशंस के, ठीक है। सो SFIO ये क्या करता है, ये सीरियस केसेस को अपने पास रखता है, ठीक है। अभी कहाँ से आता है, रिसीव कहाँ से आता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स से, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज CFT रिलेटेड सेटअप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्या होती है, NIA। आपने NIA तो बहुत बार सुना होगा, ठीक है, आपको पता होगा जैसे रो होती है अपनी इंडिया की, ठीक है, वैसे NIA भी है, जिसके अंदर आपको पता होगा काफ़ी सारे टेररिज्म यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर विक्टिम है, हमारा इंडिया जो है विक्टिम रहा है टेररिज्म का, ठीक है। कभी मुंबई में अटैक हो गया, कभी दिल्ली में अटैक हो गया, काफ़ी सारे आतंकवादियों ने यहाँ पे हमला किया था इंडिया, ठीक है, तो इसका विक्टिम है।
तो इस वजह से इस एक्टिविटीज़ को देखना कि ये एक्टिविटीज़ कहाँ से हो रही है, किस वजह से हो रही है, इसके लिए एक इस्टेब्लिश की गई थी एक इन्फोर्समेंट जिसको बोलते हैं NIA, ठीक है। इस इन्वेस्टिगेशंस सॉरी जितनी भी ये टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हुई थी उन सबको इन्वेस्टिगेट करना किसका काम होता है, अब NIA का होता है, ठीक है। जो भी टेररिज्म के रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं या फिर इसके रिलेटेड जितने इस एक्ट के अंदर जितने भी रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं उसको कौन देखता है, NIA यहाँ पे इन्वेस्टिगेट। Is it clear to everyone? ठीक है। So NIA is required to investigate and prosecute offenses affecting the sovereignty, जो सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इंडिया की जो है उसको अगर इफेक्ट करता है, फ्रेंडली रिलेशंस को अगर इफेक्ट करता है फ्रॉम, ठीक है, किसी भी ऑफेंसेस को यहाँ पे इफेक्ट करता है तो NIA यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज नेशनल ML&TF यानी कि टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क असेसमेंट सेटअप। तो इन सबको नेशनल लेवल पे ML और TF को किस तरह से असेसमेंट की जाती है उसके लिए सेटअप बनाया गया है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे वेरियस एजेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि नेशनल रिस्क असेसमेंट के साथ काम करते हैं। तो फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ Central Excise Intelligence Directorate, Journal of Foreign Trade, Serious Fraud Investigations Offices, RBI, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, ये सब के सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो नेक्स्ट चलते हैं एसोसिएशन विद इंटरनेशनल रीजनल बॉडीज। तो अब यहाँ पे इंडिया भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल एंड रीजनल बॉडी के साथ एसोसिएट कर चुका है। तो लास्ट हमने चैप्टर्स में आई थिंक पढ़ा होगा कि इन मेजर कंट्रीज़ के अंदर किस किस तरह से लेजिस्लेशन है AML के लिए एंड CFT के लिए, कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है। तो यहाँ पे इंडिया भी उनके साथ एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था यूरोसियन ग्रुप था, ठीक है, उनके साथ यहाँ पे वो दिसंबर 2010 के अंदर उसका मेंबर बन गया था इंडिया, ठीक है। एंड इंडिया मेंबर बना था एशिया पैसिफिक ग्रुप का, ठीक है, इन मार्च 1998 का। अब एशिया पैसिफिक ग्रुप, यूरोसियन का ग्रुप, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लास्ट चैप्टर में। आप वहाँ जाके देख सकते हो, अगर आप वहाँ से पढ़ के आए तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। एंड FIU इंडिया फिर से मेंबर बन चुका है एगमेंट ग्रुप का, ठीक है, मई 2007 के अंदर, राइट। सो ये सब क्या था, एसोसिएटेड विद द नेशनल बॉडीज एंड the regional board, right? So next topic की तरफ चलते हैं, that is international cooperative बायलैटरल एग्रीमेंट। सो अब यहाँ पे इंटरनेशनल जो कॉपरेट किस तरह से किया जा सकता है या यहाँ पे किस तरह से एग्रीमेंट होता है। सो FIU इंडिया जो है वो किसी भी तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे MOU का नहीं रिक्वायरमेंट होती अगर वो किसी भी तरह से फॉरेन FIU को एक्सचेंज करता है अपनी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे किसी भी तरह से उनको मेमोरेंडम की नीड नहीं होती, ठीक है। अगर वो अपनी कॉपरेशन लेवल को इन्हांस करना चाहता है या अच्छे से फ्रेमवर्क करना चाहता है, ठीक है, अच्छे से समझना चाहता है, तो वो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर MOU को यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो ईजिली अपने जिसके साथ उसका कमर्शियल रिलेशनशिप्स है जिस कंट्रीज़ के साथ, वो आराम से एक्टिवली वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। सो यहाँ तक हमारा जो 7वां चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज ऑल रिलेटेड टू द मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉरेस्पॉन्डेंस बैंकिंग, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग बैंक क्या होता है, शेल बैंक्स क्या होते हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। सो मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग पहले आपको समझना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक क्या होते हैं, ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद आपको शायद समझ आ जाएगा कि इसके किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जाता है। सो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक क्या होते हैं, येस, एनी आइडिया? तो देखो पहले क्या होता है कि कोई भी दो कंट्रीज होती हैं, ठीक है, दो कंट्रीज हैं, जैसे लेट्स सपोज कि इंडिया है, ठीक है, एंड ये क्या है, दुबई है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, दोनों कंट्रीज के अंदर बैंक है, ठीक है, इसके अंदर अपने ही बैंक, बहुत सारे बैंक्स होंगे, ठीक है। तो अगर इंडिया चाहती है कि मैं अपने ब्रांच दुबई में खोलूँ, तो किसी ना किसी वजह से वो नहीं खोल पा रहा, किसी ऑब्लिगेशंस की वजह से, ठीक है, कोई ना कोई वजह रही होगी, ठीक है। तो इस केस में वो क्या करता है, दुबई का एक बैंक है XYZ। तो XYZ यहाँ पे बैंक होता है, तो वो इंडिया इसके साथ टाई अप करता है, ठीक है, इंडिया इसके साथ टाई अप करता है। एंड XYZ जितने भी जो भी इस बैंक जो भी इंडिया प्रोवाइड करता है, जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो इस कंट्री में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इंडिया जो होगा, इंडिया को बोला जाएगा रिस्पॉन्डेड बैंक, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, रिस्पॉन्डेड बैंक बोला जाता है, ठीक है। एंड दुबई को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक बोला जाता है। इज क्लियर? इतना ही आपको समझना था, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा XYZ दुबई के अंदर, ठीक है, किसके बिहाफ पे, इंडिया के इस बैंक के बिहाफ पे।
तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एक ऐसा प्रोविजन है जिसके अंदर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बाय वन कॉरेस्पॉन्डेंस बैंकिंग टू अनदर, ठीक है, जिसको हम कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक भी बोलते हैं। तो इस कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं? कैश फंड्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल वायर्स ट्रांसफर, ड्रॉइंग अरेंजमेंट फॉर डिमांड एंड ड्राफ्ट एंड मेल ट्रांसफर पेबल थ्रू अकाउंट्स एंड चेक क्लियरिंग, ठीक है। कोई भी इनमें से जो भी ऐसी सर्विसेज होती हैं वो कौन प्रोवाइड करेगा? कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोवाइड करेगा अपने वाली कंट्री में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेट इज डिलीजेंस ऑन कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक। तो कौन कौन से ऐसे डिलीजेंस हैं जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक में यहाँ पे डिलीजेंस इज व्हाट, कि जब हम कोई भी जैसे कस्टमर्स आते हैं तो उनके लिए भी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस होता है, मतलब उनको जानते हैं। ड्यू डिलीजेंस इज व्हाट, कस्टमर्स को जानना, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे डिलीजेंस की जाती है, कस्टमर यहाँ पे बैंक्स को जानते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा काफी सारे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, बहुत जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के पर्सन वहाँ पे बाहर जा रहे हैं, बाहर के पर्सन इंडिया में आ रहे हैं, तो वो बैंक ओपन करवाते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, जिस वजह से ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स हो रही है। और वो किस वजह से हो रही है? टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की वजह से हो रही है, ठीक है। अब काफ़ी सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेज आ चुके हैं जिससे हम फॉरेन में जितने भी पर्सन रहते हैं उसको हम ईजिली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इजिली हम रेमिटेंस कर सकते हैं। तो इसी वजह से काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ठीक है। सो अब इस बैंक्स के बैंक अब इसकी वजह से क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस हो गया, ठीक है, जो इसका मेन जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो क्या बन चुका है, क्रिटिकल बन चुका है, ठीक है। सो अब बैंक से करता है सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है कि वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक है या फिर जो रिस्पॉन्डेंट बैंक है उसका नेचर क्या है, उसका बिजनेस करने का नेचर क्या है, वो किस तरह से काम करता है, ठीक है, क्या वो ड्यू डिलिजेंस के अंदर इंक्लूड होता है, क्या वो ड्यू डिलिजेंस के हर प्रोविजंस को कंप्लाई करता है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिसको हम देखते हैं, ठीक है, जो अगर जब भी हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, चाहे वो रिस्पॉन्डेंट बैंक मांगे चाहे वो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मांगे, ठीक है। सो कौन कौन सी, कि उसका बिजनेस वैल्यू क्या है, क्वालिटी ऑफ ट्रांजेक्शन वो किस तरह से करता है, बिजनेस एक्टिविटीज किस तरह से करता है, कस्टमर्स में किस किस तरह के कस्टमर्स हैं, वो किस तरह के ट्रांजेक्शन करते हैं, कितनी जोग्राफिकल एरिया में वो फैला हुआ है, कितने जोग्राफिकल एरिया में उसके ब्रांचेस हैं, बैंक है, ठीक है, ऑपरेटिंग पर्पस क्या रहता है उसका, एथिकल्स वैल्यू किस तरह से फॉलो अप करता है वो बैंक का, ठीक है, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी किस तरह से है, एंड वो क्या वो केवाईसी एएमएल पॉलिसीज और प्रोसीजर को वो फॉलो अप करता है, अकाउंट का पर्पस, अकाउंट ओपन करवाने का पर्पस क्या है, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क इन द कंट्री, क्या उस कंट्री के रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क किस तरह से है। दैट वाज ऑल अबाउट द ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, वो किस रिस्पॉन्डेंट बैंक एंड कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक का ड्यू डिलिजेंस यहाँ पे इसमें देखा जाता है, correspondent bank should also ensure that the respondent bank is able to provide। अब ये कब देखा जाता है, जब वो रिक्वेस्ट करे, ठीक है, कस्टमर की प्रोफाइल के बारे में, ट्रांजेक्शन डेटा के बारे में, ठीक है, जैसे वो मांगते तो उनको इमीडिएटली यहाँ पे प्रोवाइड करना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेगुलेटरी एक्शन। अब किस तरह से रेगुलेटरी एक्शंस यहाँ पे दिए जाते हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटरी एक्शंस में क्या आएगा, सिमिलरली जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पब्लिकली अवेलेबल होते हैं हर एक देने के लिए। अगर वो किसी भी तरह से वहाँ पे कॉन्फिडेंशियली होता है, अगर वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली प्रोवाइड कर देते हैं तो वहाँ पे एक्शंस लिए जाते हैं। यहाँ पे हम एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। द बैंक शुड ट्राई टू असरटेन द पब्लिक अवेलेबल और इन्फॉर्मेशन whether the other bank has been subjected to any serious money laundering or terrorist financing investigation or regulatory action. The central bank in some countries place such information on their website. तो कभी कभी जो कंट्रीज होती हैं, ठीक है, वो अपनी वेबसाइट पे भी डाल देती हैं कि ऐसा कुछ केसेस हुए हैं तो आप इससे पहले ही अवेयर रहें, ठीक है। सो इसी तरह से कुछ एक्शंस भी लिए जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वन इज इस्टेब्लिशिंग न्यू रिलेशनशिप। अब जब भी नया रिलेशनशिप, देखो कोई भी दो कंट्रीज आपस में जब कॉरेस्पॉन्डेंस बैंकिंग करती है तो उनके बीच में रिलेशनशिप्स बनते हैं, ठीक है। तो किस तरह से रिलेशनशिप बनते हैं, तो सबसे पहले आता है कि वो रिलेशनशिप बनाने से पहले कुछ ड्यू डिलिजेंस कवर करते हैं, ठीक है। अब कवर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स थे जो कि कवर करने होते हैं। अब पैरामीटर्स ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप दोबारा जाके देख सकते हो। एंड दूसरी बात ये है कि वो रिलेशनशिप के लिए अप्रूवल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है तो सबसे पहले बैंक बोर्ड की तरफ से अप्रूवल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बैंक अब जो बोर्ड है वो अपनी तरह से अपनी जो उनको जो सही लगता है, ठीक है, सारे कुछ फैक्टर्स को देख के वो अपनी पावर अपनी नहीं वो पावर्स को डेलीगेट करता है कि आपने इसी पावर्स के अंदर रहना है, ठीक है, आपके पास ये पावर्स हैं, आपके पास यही रेगुलेशंस है जो कि आप इसके अंदर ही काम कर सकते हैं,
राइट। सो नेक्स्ट वन इज रिव्यू ऑफ रिलेशनशिप। अब जब भी रिलेशनशिप बन चुका है तो उसका रिव्यू किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार रिलेशनशिप बन गया, ठीक है, एक बार रिलेशनशिप बन गया, ट्रांजेक्शन होने लगी हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे हैं, तो वो बात खत्म। ऐसा नहीं है, ड्यू डिलिजेंस जो है वो ऑन गोइंग एक्सरसाइज है, ठीक है। जब तक उनकी रिलेशनशिप है तब तक वो ड्यू डिलिजेंस चलता ही रहेगा, ठीक है, ऑन एनुअल बेसिस पे चलता है यूजुअली, ठीक है। सो अब यहाँ पे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि उस रिलेशनशिप में देखे जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस ओरिजिनेटेड बाय द कॉरेस्पॉन्डेंस। जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक है उसकी यहाँ पे क्वालिटी देखी जाती है ट्रांजेक्शंस। अब यहाँ पे देखी जाता है ट्रांजेक्शंस का कि क्या वो ML या TF के कंसर्न्स में तो नहीं है, ठीक है। क्या देखो अब, हाँ देखो अब जो बैंक्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि जो दुबई बैंक है, ठीक है, वो कॉरेस्पॉन्डेंट था, ठीक है। अब इंडिया को क्या पता है, इंडिया को क्या पता है दुबई जो है, जो दुबई के अंदर XYZ बैंक है, क्या वो AML एंड जो CFT है उसके प्रोविजंस को फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शंस को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस के, राइट। एंड मोर ओवर नेक्स्ट वन इज इन्फॉर्मेशन कंटेन इन द वायर ट्रांसफर। तो जो वायर ट्रांसफर के अंदर है जो इन्फॉर्मेशन क्या कंटेन हो रही है, ठीक है, तो ये रिव्यू किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन ड्यू डिलिजेंस। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस ट्रांजेक्शन ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये होता है कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक होता है, ठीक है, वो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस के अंदर एक्सप्लॉइट हो जाता है, ठीक है। अगर वो वहाँ पे किसी भी तरह से ट्रांजेक्शन्स के अंदर किया जाता है तो उसके पास पूरा कंसर्न है, ठीक है। देखो लेट्स सपोज कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया है जो कि एक रिस्पॉन्डेंट बैंक था। हमने जो एग्जांपल लिया था उसी को कंसीडर करते हुए हम आगे चल रहे हैं। तो इंडिया जो था वो रिस्पॉन्डेंट बैंक था एंड जो दुबई था वो कौन था, कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक, ठीक है। तो इस केस में अगर इंडिया को लगता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक जो है वो क्या है यहाँ पे PML के अंदर AML एंड CFT के अंदर इंक्लूड किया गया है, तो इंडिया के अंदर पूरा यहाँ पे पावर होती है, ठीक है। उनके पास इंडिपेंडेंट यहाँ पे अथॉरिटी होती है कि दोबारा से यहाँ पे अच्छे से ड्यू डिलिजेंस कर सके, ठीक है। इन द प्रोसेस इफ इट हैज सम कंसर्न सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, तो वो भी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी वो निकलवा सकती है इस ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो वाइस वर्सा होता है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज शेल बैंक्स। तो नेक्स्ट चलते हैं शेल बैंक्स की तरफ। शेल बैंक्स कौन सी होती हैं? तो शेल बैंक्स जो होती हैं वो रेगुलेट कहीं और होती हैं और कॉर्पोरेट कहीं और की जाती हैं। इसका मतलब आपको समझा देती हूँ। अब यहाँ पे जो बैंक्स होती हैं वो इनकॉर्पोरेट किसी दूसरी कंट्री में होती हैं, लेकिन जो इनकी जो फिजिकल प्रेजेंस होती है वो कहीं भी नहीं होती है, ना ही वो किसी भी रेगुलेटेड फाइनेंशियल ग्रुप से एफिलेटेड होती है। दे आर कोल्ड एज अ शेल बैंक्स, ठीक है। सो शेल बैंक्स को परमिट नहीं किया गया है इंडिया के अंदर, इसीलिए आपने कभी भी इंडिया के अंदर शेल बैंक्स नहीं सुना होगा, ठीक है। तो शेल बैंक्स ऑपरेट नहीं कर सकती इंडिया के अंदर, तो बैंक रिफ्यूज कर सकती है टू एंटर इनटू अ कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप विद द। अब इंडिया के अंदर वो मना कर सकती है कि हम एज अ शेल बैंक्स के साथ काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बैंक्स जो है, अगर बैंक शुड ऑल्सो गार्ड अगेंस्ट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद द। अब अगर किसी भी तरह से अगर बैंक सपोज कि इंडिया के बैंक्स जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक बनना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी फॉरेन बैंक के साथ, तो उस केस में क्या होता है, उनको पहले ध्यान रखना होगा कि वो शेल बैंक्स तो नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे देखनी होगी क्योंकि शेल बैंक्स को अलाउ नहीं किया जाता है इंडिया के अंदर, ना ही उसके कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक के साथ भी रिलेशनशिप बनाने के लिए मना किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज FATF आइडेंटिफाई कंट्रीज। तो यहाँ पे FATF आइडेंटिफाई कंट्रीज का मतलब ये होता है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो ये ग्रुप है, ठीक है, ये जो कमेटी बनाई गई है, तो उसको कौन कौन यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज उसको प्रोविजंस के अंदर लेके आती है, मतलब कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज जो उसको फॉलो अप करती है, राइट। सो बैंक यहाँ पे काफ़ी सारे, देखो हर एक का जो कंट्रीज होती हैं वो क्या है, उनके अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होता ही होता है, ठीक है, CFT होती ही होती है, ठीक है। इसीलिए FATF एक यहाँ पे अलग से बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज जो नॉन कोऑपरेटिव है, ठीक है, जो कि कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, राइट, एंड वो अगेंस्ट वो अगेंस्ट नहीं है ML एंड TF के, तो यहाँ पे कुछ देखी जाती है, ठीक है। एंड दे शुड ऑल्सो इंश्योर दैट द रिस्पॉन्डेंट बैंक जो है वो, अब देखो क्या होता है, अब इंडिया के साथ अगर दुबई यहाँ पे अपना रिलेशनशिप बनाना चाहता है, इन्हें कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, उस केस में इंडिया को पहले ये मेजर करना है क्या वो FATF के अंदर आता है, क्या वो FATF के साथ कॉपरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक दूसरे के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इंश्योर करना चाहिए कि जो रिस्पॉन्डेंट बैंक है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज को फॉलोअप करता हो, प्रोसीजर को फॉलोअप करता हो, ठीक है, एंड अप्लाई करता हो जितने भी ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर होते हैं, राइट। तो इसी ये साथ ही साथ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के अकाउंट्स पे भी अप्लाई किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज हाउसेस। एक्सचेंज हाउसेस कौन से होते हैं?
ये ये मोस्ट प्रोबेबली एनआरआई बिजनेस के लिए होते हैं। जो अभी एनआरआईज होते हैं वो अपना यहाँ पे रिलेशनशिप बनाने के लिए एक्सचेंज कंपनीज के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे क्या होती है, डीलिंग्स होती हैं विद द एक्सचेंज कंपनीज, राइट। एंड वो इंश्योर करते हैं द एक्सचेंज कंपनी हैज़ एडिक्वेट स्ट्रेंथ, ताकि वो फ्रॉडेंट के साथ यहाँ पे प्रिवेंट कर सकें एंड मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांसफर को भी कम कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज फॉरेन ब्रांचेस। अब फॉरेन ब्रांचेस का मतलब ये होता है, लेट्स सपोज कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया है एंड यूएसए का कोई बैंक है, लेट्स सपोज कि यूएसए का XYZ बैंक है, वो इंडिया के अंदर अपना ब्रांच ओपन करना चाहता है, तो वो ब्रांच ओपन कर लेता है, ठीक है। तो इस ब्रांच को इंडिया के यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी मानना पड़ेगा एंड यूएसए के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी मानना पड़ेगा, तभी जाके वो यहाँ पे अपना बिजनेस का काम कर सकता है, ठीक है। तो इंडियन बैंक दैट ऑपरेट अब्रोड थ्रू अब जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो अब्रोड से आएगी उनको भी ऑपरेट करता है, उनके सब्सिडरीज को, जॉइंट वेंचर्स को, ठीक है। लेकिन उनको क्या करना है, यहाँ इंडिया के भी AML को ध्यान में रखते हुए अपने इस ब्रांच को रेगुलेशंस करनी है एंड यूएसए की AML को भी AML के प्रोसीजर भी यहाँ पे कंसीडर करना होगा, ठीक है। सो डेट वॉज ऑल अबाउट द फॉरेन ब्रांचेस, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आया होगा, ठीक है। सो इफ द लोकल लॉज ऑफ द जुरिडिक्शन प्रोहिबिटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, अगर कोई भी लोकल रोल जो जुरिडिक्शन का लोकल होगा वो प्रोहिबिट कर जाता है कि हम ये KYC AML के गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं, साथ के साथ RBI को नोटिफाई करना ही होता है। इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो कॉरेस्पॉन्डेंस बैंकिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं एंड हम पढ़ चुके हैं कि किस किस तरह से FTF आइडेंटिफाई कंट्रीज कौन सी होती हैं एंड फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीज एंड फॉरेन हाउसेस क्या होती हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। And if you want to enroll AML and KYC course from Learning Session, then you have to download Android application from Google Play Store, which is IIBF Learning Center app. And if you are iOS user, then you have to download My Institute app and use the organization code, which is GEGKT, as you can see on the screen. So guys, enroll the KYC course and you can also join our Telegram channel. So in this channel you will be getting latest updates and latest knowledge regarding all the certification courses, and yes, you will be getting questionnaire in the form of polls, and you will be getting chapter wise previous year questions and free EPDF notes of important topics. So do join with us, and here is exciting offer which is flat 82% on our all listed pack. Just you have to apply coupon code exams, as you can see on the screen. So guys, don't miss the chance, just grab the opportunity to enroll the KYC and AML course from Learning Session. So after enrollment, the premium member will be getting mock test, full course videos according to the latest syllabus, conceptual videos and record live lectures in Hindi and English mixed language, and yes, free EPDF notes complimentary given by us. To access them, you just have to join our Telegram channel. So the link of the app and the Telegram channel is in the description box below. Do check it out, and if you have any query or doubts related to course details, you just have to contact us. नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हमारी टीम आपको ज़रूर रिवर्ट करेगी. एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ iibf.info. And if you are new on our channel, then do subscribe our channel and don't forget to press the bell notification icon for upcoming new video. And thank you so much. See you on other side, and share this video with your friends.